Good evening, dear students. Today we are going to start our new chapter called trigonometry. Here we will learn about what is trigonometry, what is the purpose of trigonometry, and in this trigonometry, the most important thing is trigonometrical ratios on which this trigonometry is based. So how these trigonometrical ratios are defined, then the other thing is, if we are known with only one of the trigonometrical ratios, then all the remaining trigonometrical ratios can be calculated. There are total 6 trigonometrical ratios called sine, cos, tan, cosec, sec, cot. And if we have the value of say sec of theta, then all the other 5 can be calculated. So these things we will try to learn too. We will try to finish these things too. Okay. Now let us continue. Let us start with this. What is this trigonometry? A student, this trigonometry deals with the measurement of a triangle. Trigonometry simply mean it is measurement of a triangle. But in this case, the measurement is based on knowing certain angle and certain side. It is not the measurement of all sides by a scale or geometry, but it is a different kind of measurement. If we have the value of one of the angle and one of the side, then all the other side length, other angle can be calculated. Measurement of triangle with a known or with few known angles and side and side length. Okay, student. So whatever the type of triangle, you can imagine, even this is say not a right angle triangle, still this trigonometry is applicable. So in this case, if say one angle is this theta, and let this side be ABC, say in front of vertex A, side be A, in front of B, the side length will be, in front of C, the side length be small c. Okay, so this angle theta is related to this ABC, but at your level we have to focus only for the right angle triangle. Okay, because if this is the say theta, this is the delta, this is the beta or something like that, then there is a common relation that say AB by sine of C is equals to BC by sine of A is equals to AC by sine of B. But these relations are not belonging to your level, so those things we are not going to analyze. But the thing is that this is applicable for any kind of triangle. But at your level, we have to focus about the right angle. So this trigonometry is based on 6 trigonometrical ratios. 6 T ratios defined for any angle. आप कोई सा भी एंगल ले लीजिए तो आप 6 तरीके के रेशियोज आप डिफाइन कर सकते हैं वहां पे. Okay, means here if I have taken this angle theta, then I can define sine theta, cos theta, tan theta. So how is the definition that we have to learn? And this definition is based on consideration of right angle triangle. So T ratios
are defined for a right angle triangle. So while defining these T ratios, we are going to take a right angle triangle. Okay, but with certain modifications, these ratios can be applied to other triangle even which is not a right angle triangle. Okay, so there are sine formula, cosine formula, and many more formula. These things you will learn in higher standard. But at your level, whatever these ratios we are going to define, we will always stuck to a right angle triangle, and all the calculation will be done in that right angle triangle only. So what are the trigonometrical ratios? So a student, we have a right angle triangle, then in a right angle triangle, what are available to us? That you have to keep in mind. One of the angle is always 90 degree. That's why it is called as a right angle. Okay. So let me take this vertex as A, this as B, this as C. Right angle means one of the angle will be 90 degree. Here I am choosing let B is equals to 90 degree. And the side opposite to B is called hypotenuse, commonly denoted by H. Okay. And if we are considering an angle, say angle A I am considering. So for this angle A will have certain value, maybe 30 degree, 40 degree, 65 degree, 70 degree. Let that value be theta. The commonly used term or the symbol for the angle is theta. So let this angle be theta. Then considering this angle theta and hypotenuse, the two other sides are given name, but these two other sides name is based on fixing the hypotenuse and this angle. Student, this is very important to understand that whatever the other name, say base we are going to write, that is always in reference to this angle theta, and theta is allocated with reference to the hypotenuse, and hypotenuse is nothing but the absolute definition is it is opposite to the right angle. Okay student, now the angle theta which is considered, so just the side touching this angle theta is called adjacent side. Adjacent is the common name, which means the neighboring side. So neighbor means something common. What is common? So this angle theta which is just touching this side. Okay. So that's why it is called as adjacent or neighboring side. Okay student. And in general denotation, say in term of the triangle, this is called as base. If we denote this as base, then we are denoting this by B. Okay. But considering this angle theta and giving the name, it is also called as your adjacent side. Okay student, it is this one. And this side which is not adjacent to B or adjacent to theta, then that is called the opposite one. So whatever the BC here we are writing, it is called as the opposite. Opposite means in front, it simply means. But in the term of the triangle, it is commonly called as perpendicular. So the term like base in geometry means the horizontal one. The perpendicular means the vertical. This is the common understanding of mathematics. But in trigonometry, a student, keep in mind, it need not be necessary that the horizontal line should always be base and the vertical line should be perpendicular. It is possible that this
P perpendicular may act as base and this horizontal line may act as perpendicular. So it is depending on what the angle. So that's why it is advised to use the term like opposite side, adjacent side in trigonometry rather than base and P. But in terms of base and perpendicular, it is equally easy or rather more convenient. If you are allocate or if you are able to allocate these sides with reference to the angle. So student, right now you must keep in mind the side opposite to the given acute angle. Since one angle is 90 degree, that name is already fixed as hypotenuse. But whatever the acute angle we are going to consider, for that the side opposite to this acute angle is called as perpendicular in trigonometry, denoted by a small p. But for understanding this correctly, it is basically opposite side. A student, we have to keep in mind, whatever the term I am using is always in reference to this angle theta or the angle A I have considered. But if I am going to consider the angle C, see, so write a note, if considered angle is changed, then this P and B or B and P perpendicular and base, perpendicular and base means adjacent side and opposite side, they also get interchanged, Means considered angle is changed. What does it mean? Right now, means in this triangle ABC, I have considered the angle A, and focusing the angle A, I have allocated this base or adjacent side, then opposite side or perpendicular. This was the meaning of considered angle. Now, if you are interested with angle C, now your consideration angle is angle C, then your base and perpendicular will change, and accordingly the trigonometrical ratios values will also be changed. Okay, so that you have to take care. So that is important. Means what? If I am drawing like this, if now my angle is still, this is denoted as ABC. Now this is the angle theta. Now the angle theta is not the A, but this is the angle theta. Okay, student? Angle B is still 90 degree. So this hypotenuse remains unchanged. H. A student, आप जब नॉर्मल ज्योमेट्री पढ़ने जाते हैं तब आपको यदि यहाँ बेस पूछा जाता है तो आप ए बी बोलते हैं और वो सही है. ओके, बट जब हम ट्रिग्नोमेट्री में इसी की बात करते हैं कि हमारे लिए बेस क्या है, तो हमारे लिए बेस वो साइड है जो इस एंगल को टच करता हुआ है. ओके, मींस एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड एज बेस. तो अभी जब आपका एंगल सी कंसीडर करेंगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखने के लिए, तो आपको एडजेसेंट साइड लेना पड़ेगा. इसे अब हम बेस कहेंगे. हाँ, तो बेस का जो नॉर्मल मीनिंग होता है, जिसे मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि नॉर्मल हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है बेस लीजिए, वर्टिकल का मीनिंग है परपेंडिकुलर लीजिए. ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है. पहला चीज आपको ध्यान में रखनी है. ओके, सो ये क्या होता है परपेंडिकुलर एंड बेस? ये हम कौन सा एक्यूट एंगल कंसीडर कर रहे हैं इस पे डिपेंड करता है. इट इज द पॉइंट नंबर 1.
बी फोकस ऑन दिस पॉइंट। यदि आपने ये गलती कर दिया तो कभी ट्रिग्नोमेट्री सीख नहीं पाएंगे, एंड ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज बिल्कुल आप गलत निकालेंगे। हाँ, दो ट्रिग्नोमेट्री इज द इजीएस्ट। सो दिस इज द बेस। नाउ इट विल बी डिनोटेड बाय बी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आप यदि इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहे, इट इज कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड। नाउ अभी इस एंगल के लिए this AB, though it is horizontal, but now this AB will be called as perpendicular. This will be the perpendicular. Denoted by a small p. एंड यदि आप कॉमन लैंग्वेज में लिखना चाहे, जो कि सबसे अच्छा होता है, जो बिगनर्स के लिए होते हैं उनके लिए, so that is called as what? Opposite side. आई बात समझ में बच्चों? सो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम बेस की बात करेंगे तो इसका ये मीनिंग नहीं कि हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बेस ले लें। इसका ये मीनिंग है कि कौन सा एंगल हमने लिया है उसको टच करता हुआ परपेंडिकुलर को ज्वाइन करने वाला, यानी 90 डिग्री एंगल को ज्वाइन करने वाला कौन सा साइड है, वही बेस कहलाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर की जब हम बात करेंगे तो इसका मीनिंग ये रहेगा, जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके सामने का साइड, मींस अपोजिट साइड। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि आपने ये चीजें ध्यान में रखी, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बहुत इजी है। यदि आपने ये चीजें ध्यान में नहीं रखी तो सब गलत लिखेंगे। हाँ स्टूडेंट, आई होप यू विल गेट दिस पॉइंट व्हाइल आई विल राइट दिस रेशियोज। सो अगेन लेट अस रिकॉल इट, जितना भी हमने आपको बताया। स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग है कि हम ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे जब उसके कुछ एंगल एंड कुछ साइड पता है। तो अभी आप देखेंगे कि अपने को एक एंगल एंड जस्ट two sides are known, or even one side is known, then all the other two sides and all the other two angles can be calculated. This we will see. Or even not that, अपने को यदि किसी ट्रायंगल में, बेसिकली आपके लेवल में राइट एंगल ट्रायंगल में यदि दो साइड पता है तो बाकी तीसरे साइड भी आप निकालेंगे और ये सारे के सारे एंगल का भी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीजें ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसकी पढ़ाई, और ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है 6 नए रेशियोज डिफाइन करके। मींस 6 न्यू रेशियोज आर डिफाइंड इन ट्रिग्नोमेट्री व्हिच इज द बेस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे अपना नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ऐसी ट्रिग्नोमेट्री भी मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है। जैसे हमारे नंबर सिस्टम में 1 2 3 4 और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, दीज आर दी वेरी मच बेसिक्स, ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में ये 6 जो रेशियोज अभी हम लर्न करेंगे, ये 6 रेशियोज ही बेस हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री के। सो ये 6 रेशियोज क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, मींस व्हाट इज द डेफिनेशन, ये आपको पहले ध्यान में रखना है। ये होने के बाद लेकिन जब हम ये रेशियो डिफाइन करने जाते हैं उस समय हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि ये रेशियो ऑलवेज एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन है, और ये रेशियोज ऑलवेज किसी एंगल को लेकर के डिफाइन है बच्चों। सो यदि मैंने एक एंगल ए लिया है तो इसमें हमें जो टर्म यूज किए जाते हैं वो परपेंडिकुलर एंड बेस यूज किए जाते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस इफ in reference to trigonometry doesn't exactly mean the base and perpendicular of normal geometry. यहां जो बेस होता है ये जो आपने एंगल कंसीडर किया है उसको टच करता हुआ साइड होता है, एक्सक्लूडिंग द हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज ऑलरेडी एलोकेटेड एज द साइड अपोजिट टू राइट एंगल, बट उस राइट एंगल को छोड़ करके बाकी जो दो छोटे छोटे एंगल है दे विल बी एक्यूट। व्हाई एक्यूट? एक्यूट का मीनिंग है जो 90 डिग्री से कम होना है। यदि दूसरा एंगल भी 90 डिग्री या उससे ज्यादा हो गया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, ये आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ,
So whatever your angle under consideration or acute angle you are going to consider, उस acute angle को लेते हुए आप बेस एंड परपेंडिकुलर डिफाइन करेंगे। बेस वो साइड है जो इस एंगल को जस्ट टच करता हुआ एंड 90 डिग्री जो एंगल है वहां तक पहुंचता है, मीन्स द वर्टेक्स ए टू बी। परपेंडिकुलर वो है जो इस एंगल जो आपने बनाया उसके जस्ट अपोजिट वाला साइड। इट इज दिस, इफ द एंगल इज चेंज, say now if our angle of consideration is angle C rather than angle A, then this perpendicular and base will also interchange। तो बेस का मीनिंग है कि जो एंगल हमारे कंसिडरेशन में उसको टच करता हुआ साइड, हाइपोटेनस को छोड़ के जो दूसरा वाला साइड है। परपेंडिकुलर का मीनिंग वो है कि जो एंगल हमने कंसीडर किया है उसके सामने का साइड, यानी क्या जो एंगल हमने नहीं कंसीडर किया है उसको टच करने वाला साइड। हाँ स्टूडेंट, तो ये इस चीज को लेकर के हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम डिफाइन करने जा रहे हैं, डेफिनेशन ये बेसिकली अभी तो हम आपके लेवल में एक्यूट एंगल लेकर के बताएंगे, बट इन हायर स्टैंडर्ड यू विल लर्न these ratios are applicable even for the obtuse angle, even for more than 180 degree, or even for any angle 370 540 any angle you write, उसके लिए आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपके सिलेबस से बाहर है, तो आपके जो सिलेबस में हम उसी की बात करेंगे। तो पहला चीज जो ध्यान में रखे कि हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक एंगल पहले फिक्स कर लेंगे, उस फिक्स्ड एंगल के रेफरेंस में हम बेस एंड परपेंडिकुलर देखेंगे। ये पहला टिप्स है और टूल है हमारे ट्रिगोनोमेट्री का, जिसे आप भूलेंगे नहीं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मैं लेट मी नंबर दिस वन, मैं आपकी अच्छाई के लिए इसको नंबर भी कर देता हूं। सो पहला पॉइंट ये कभी नहीं भूलेंगे, तभी जाकर करके आप ट्रिगोनोमेट्री सीख पाएंगे, आप मास्टर हो जाएंगे ट्रिगोनोमेट्री के। जस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर में यदि आप ये सारी की सारी जो टिप्स हैं इसे यदि आप ध्यान में रखेंगे तो। बट यदि आप नहीं ध्यान में रखेंगे, जस्ट आप सोचेंगे क्वेश्चन को रट लो, तो गलतियां होंगी, अदरवाइज बहुत इजी है ट्रिगोनोमेट्री। द सेकेंड पॉइंट इज दैट, सेकेंड पॉइंट इज नथिंग बट जो ट्रिगोनोमेट्री में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके कॉमन प्रॉपर्टीज हम ट्रिगोनोमेट्री में भी यूज करने वाले हैं। व्हाट दे आर? So since we are considering a right angle triangle, so जब हम right angle triangle consider कर रहे हैं तो right angle triangle में क्या properties होते हैं? Denotation, let me denote this by ABC itself. अब हम full form नहीं लिखेंगे, I will write this as H, this as B, this as P. While I am writing this B and P, which angle is under consideration, a student? Yes, A or C? Can you tell me? Good. पहला चीज गुड, मीन्स अभी आपने समझा कि यदि हमने H B P लिखा है, इसका मीनिंग है कि हम जो एंगल लेने वाले हैं रेशियो डिफाइन करने के लिए वो A है। ऐसे ही मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि मैं पहले ऐसे यदि मैं ये कंसीडर कर लेता, आप समझिए कि यदि मैं ये ले लेता, ठीक है, अभी लगेगा कि नहीं ये फिर से छोटा बड़ा साइज है। सो लेट मी टेक, इफ आई एम एलोकेटिंग दिस एज H, दिस एज B, दिस एज P, यदि हमने ऐसा लिख लिया है तो हमारा कौन सा एंगल कंसिडरेशन में है? इफ आई एम नाउ डिनोटिंग दिस एज PQR और दिस एज P, दिस एज Q, दिस एज R। अभी यदि किसी ट्रायंगल पे ऐसा लिखा हुआ है कि जिसका हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर नीचे लिखा हुआ है, बेस ऐसा लिखा हुआ है, क्या इसका मीनिंग है कि ये डिनोटेशन गलत है? डू यू थिंक लाइक दैट? और व्हाट इन्फेरेंस? इसका ये मीनिंग है कि ये हम ट्रिगोनोमेट्री में जब बात करने जा रहे हैं तो हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे, आर को कंसीडर करने वाले हैं। ओके, सो हो सकता है कि इसको हम किसी चीज से भी डिनोट करें, एंगल आर से ही डिनोट करें,
या थीटा से हमें डिनोट करें, या बीटा, अल्फा, ऑल दीज आर द ग्रीक सिंबल्स व्हिच आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिनोटेशन ऑफ एंगल। ओके स्टूडेंट, तो ये मीनिंग होता है। तो आप ध्यान रखें, परपेंडिकुलर बेस ये हमारे एंगल कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है, पहला चीज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जो राइट एंगल के ट्रायंगल के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब कुछ यहां हम यूज कर सकते हैं एज इट इज। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? सो प्रॉपर्टीज इज Pythagoras theorem, that is the most important thing. So Pythagoras theorem, what this tells? This tells that hypotenuse square is equals to p square plus b square, और b स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर मीन दी सेम थिंग। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने का आप साइड ले लीजिए, इसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के सामने का साइड, पक्का ध्यान में रखें, राइट एंगल के सामने का साइड सबसे बड़ा साइड होता है, तो बड़े वाले साइड का स्क्वायर छोटे वाले साइड के स्क्वायर के सम होते हैं। यानी व्हाट आर द अदर टू साइड? वन इज आवर ए बी, तो इसका आप स्क्वायर कर लीजिए, एंड इसको ऐसे ही आप बी से इसका आप स्क्वायर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सो वेदर यू रिमेंबर इन दिस फॉर्म और दिस फॉर्म मीन दी सेम थिंग। ओके, बट ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रखने के लिए ऑलवेज पीबीएच के फॉर्म में ध्यान में रखिए, सबसे अच्छा होता है। ओके, शुरू में हम दोनों ही लिखेंगे, बट आज के बाद में इन नेक्स्ट क्लास आई विल यूज जस्ट पीबीएच, बट टुडे आई विल यूज बोथ बेस, परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, ये सब कुछ हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी यहां से यदि हमें P निकालने पड़े तो हम P कैसे निकालेंगे? इफ P इज रिक्वायर्ड दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रीअरेंज करके, ठीक है। नेक्स्ट, यदि हमें इसी से यदि हमें B निकालने हैं, here is on the right hand side you have to take the under root of h square minus p square। ओके, सो ये जहां हमें P और B चाहिए, यदि हमें h दिए हुए हैं तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते, यानी कि if we are given with the hypotenuse length, base length, perpendicular can be calculated by applying this one. If we are given with the hypotenuse and perpendicular, then its base length can be calculated by this one. This is the second important point. Okay, जब हमें ये दो चीजें आ जाती हैं तब हम बात करते हैं 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज की। हाँ, सो व्हाट आर दिस 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो अभी आप इस ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को आंख बंद करके लिखेंगे, यदि आपने पीछे की चीजें ध्यान में रखी और याद कर ली होंगी तो। देखिए, सो व्हाट आर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज? So this trigonometrical ratios commonly called as T ratio or T ratios। स्टूडेंट, ये जो हम अभी लिखेंगे ये इसका डेफिनेशन ही है। लाइक आई विल राइट साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप ये नहीं कहेंगे सर अपोजिट साइड ही क्यों लिया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्यों नहीं लिया। ये क्या है? डेफिनेशन है। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम डेफिनेशन प्रॉपरली या जो ज्यादा सुटेबल है उसे लेकर हम डिफाइन करते हैं। तो जब मैथ्स के ट्रिगोनोमेट्री बनाए गए तो साइन थीटा ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि अपोजिट साइड टू अ एंगल बाय हाइपोटेन्यूज लेना है। यदि उसने बोल दिया होता कि नहीं साइन थीटा नहीं, हम इसे कुछ और भी नाम दे देंगे, साइन कॉस टैन के बदला किसी ने बोल दिया ना मैं इसे मोनोट नाम दे देता हूं, तो मोनोट थीटा हम पढ़ते हुए होते हैं। सो ये डेफिनेशन किसी भी चीज का बहुत बेसिक होता है। तो डेफिनेशन में क्यों नहीं चलता है? तो पहला चीज आप ध्यान में रखें कि देयर आर टोटल 6 रेशियोज एंड दिस 6 रेशियोज के जो डेफिनेशन है ये लिखेंगे। सो टोटल 6 रेशियोज आर देयर, जिसमें कि हम पहले 3 रेशियो को फंडामेंटल रेशियो बोलते हैं और बाकी 3 रेशियो को उसका रेसिप्रोकल और रिवर्स रेशियो बोलते हैं। ओके, सो यू मे राइट दिस एज 3 फंडामेंटल
ratios and other three as reverse, or better word is reciprocal. ये ऐसा, ओके। अब ये जो तीन जो रेशियो डिफाइन किए गए उसका नाम बता दिया गया कि उसे साइन कॉस टैन लीजिए, ठीक है। और पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहां, जब भी हम ये रेशियोज की बात कर रहे हैं, सो 6 रेशियोज फॉर एनी एंगल, कोई भी एंगल जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के रेफरेंस में ही ये रेशियोज डिफाइन होने वाले हैं। यानी हम यदि इस एंगल को जनरली ही हम बस डिनोट कर ले कि लेट दिस एंगल बी थीटा, थीटा हमारा कोई एंगल है, तो ये जो तीन फंडामेंटल रेशियोज डिफाइन किए गए हैं इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल। पहला तो साइन ऑफ एंगल मैथ में इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैथमेटिक्स का मीनिंग ही है कि हर चीज मैथमेटिकल लैंग्वेज उसके सिंबल्स में चलने चाहिए। तो ये इंग्लिश का लैंग्वेज मैथ्स में नहीं चलता है, तो इसने बोल दिया कि इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आप साइन पूरा भी कंप्लीट SINE करके मत लिखिए, यू कैन ड्रॉप द ई, सो साइन, ओके। ये साइन का शॉर्ट फॉर्म साइन। एंड जो एंगल है, आपने जो भी एंगल ले रहे हैं उसका मेजरमेंट से आई एम डिनोटिंग दिस एंगल बाय थीटा, so this is our denotation. If I am denoting by beta or a, I will write that in front of this sign. Okay, it is this one. तो पहला जो फंडामेंटल एंगल बताया गया वो ये बताया गया। दूसरा बताया गया कि आप कोसाइन करके बोलिए ऑफ एंगल, बट लिखते समय बताया गया कि इतना बड़ा कोसाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली आप एक तीन, पहले जो तीन अल्फाबेट से आप ले लीजिए एंड इसको आप इसके जो भी एंगल है उसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज है। तीसरा जो बताया गया, जो डिफाइन किया गया, हाउ इज द डेफिनेशन, कि ये हम कैसे लेंगे ये अभी आपको हम बताने वाले हैं, बट हमने आपको जस्ट ये बता रहे हैं कि कौन कौन से एंगल चूज किए गए, क्या क्या नाम लिए गए ये। सो राइट ऑन द थर्ड वन, थर्ड में ये डिसाइड किया गया कि हम एंगल का जो एक रेशियो लेंगे उसे हम बोलेंगे टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल। स्टूडेंट डू यू नो कि बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं कि tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू P बाई बी, ये समझते हैं, लेकिन उसको जब टेंजेंट ऑफ एनी एंगल क्या होता है ये बतलाइए तो वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनको शायद बुक्स में या टीचर ने ये नहीं बताया कि टेंजेंट का ही शॉर्ट नाम क्या है, tan है। तो मैं आपको वो हर चीज बतलाता हूं जिससे कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये टेंजेंट को जस्ट tan से डिनोट करने को एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। तो ये तीन रेशियोज बोले गए। अब ये क्या डेफिनेशन है, दैट आई विल राइट। फिर बताया गया कि इसका आप रेसिप्रोकल लीजिए, तो बताया गया कि यदि कहीं पे 1/sin ऑफ थीटा आ जाए तो इसको आप बोलेंगे कोसेकेंट करके, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज कोसेक ऑफ थीटा। बट यदि आप देखेंगे तो कोसेक ऑफ थीटा का मीनिंग है इट इज को सेकेंट ऑफ एंगल, इसका पूरा फुल फॉर्म ये होता है कोसेकेंट। आपने टेंजेंट एंड सेकेंट पढ़े हैं ना, वही टेंजेंट एंड सेकेंट, वहीं से ये नाम लिया गया। क्यों, आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, ये जो बेसिक डेफिनेशन लिए गए हैं ये एक सर्कल बना करके एंड उसके पहले एक देखे गए कि उस सर्कल में कब टेंजेंट हो जाता है कब वो सेकेंट रहता है, इसी से डिफाइन किया गया है। विल लर्न इन हायर स्टैंडर्ड, उस तरीके से आपको नहीं पढ़ाना है, अदरवाइज मैं यदि 11-12 को पढ़ाता हूं तो ऐसे पढ़ाता हूं, बट आपके लेवल में ऐसे याद रखना है। सो दिस वाज द फोर्थ वन, कि फोर्थ वन क्या है, कॉसेक ऑफ थीटा डिफाइन किया गया। ऐसे ही इस को उल्टा लेते हुए, मींस कॉस को रिवर्स लेते हुए डिफाइन किया गया, व्हाट इज दैट, सेक ऑफ थीटा, मींस इट वाज आवर secant of angle and this was called as sec of theta। हाँ स्टूडेंट, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ये जो sec वर्ड है इतना ले लिया गया।
ये क्या है, ये बोला गया कुछ नहीं, ये जो आपने इधर कॉस लिखा है ना, इसका जस्ट आप उल्टा, जब कभी भी ये रेसिप्रोकल आएगा तो उसे हम सेक थीटा लेंगे। इट्स सो सिंपल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और सिक्स्थ वन। Sixth one was the reciprocal of tangent. It was called as cotangent. So cotangent of angle. So this cotangent of angle is denoted by only these three words called cot of theta. And since it is the reciprocal, तो 1 by tan of theta. So स्टूडेंट, यहां हमने इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशन भी याद कर ली और समझ ली। क्या कि कभी भी हमें यदि कोसेक की बात की जाए, इसका मीनिंग है कि साइन का रेसिप्रोकल लेकर के लिखना है। मीन्स साइन का जो डेफिनेशन होगा उसके ठीक उल्टा वाले डेफिनेशन हो जाएंगे, मीन्स उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यदि अपने को कोसेक लेना है तो हमें साइन का रेसिप्रोकल लेना है। यदि अपने को सेक लेना है तो कॉस का रेसिप्रोकल लेना है। यदि अपने को टैन लेना है तो कॉट का रेसिप्रोकल लेना। और डेफिनेशन वाइज कॉट इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टैन। बट अभी आपको अच्छा पता है कि यदि मैं जैसे अभी आप ये समझिए, से बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन, अभी हमने ये लिखा से कॉट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई टैन ऑफ थीटा। तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकता हूं कि आई कैन ब्रिंग दिस टैन ऑफ थीटा हियर एंड आई कैन ब्रिंग दिस इन डिनोमिनेटर, कॉट ऑफ थीटा इन डिनोमिनेटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ऐसे लिखिए, और कई बार हम इसे इस तरीके से याद रख लेते हैं कि मैं tan into cot equals to 1, that is the other relation. So that is the best way or best thing, tan of theta into cot of theta is equals to 1. So whether you keep this thing in mind, it is the product. Student, आपको ध्यान में ये रखने हैं कि tan of theta, this is forming one entity, और एक एंट्री है और ये दूसरा एंट्री है, ओके, और दूसरा कोई मैथ्स का क्वांटिटी है। हाँ, ये आपको सो tan ऑफ थीटा ध्यान में रखने हैं एक एंट्री, जब वो थीटा के साथ एसोसिएटेड है। ऐसे ही आप चाहिए तो यहां से रिलेशन आप लिख सकते हैं। व्हाट इज दैट? द अदर वन इज दे, लेट मी राइट, सेक एंड कोसेक, और साइन एंड कॉस को पहले लिख लेते हैं। साइन ऑफ थीटा इंटू साइन का रेसिप्रोकल अपने को क्या मिला है? कोसेक ऑफ थीटा, ये अपने को 1 मिलता है। देन यदि मैं कॉस लेता हूं, कॉस ऑफ थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो डिफाइन किया गया है दैट इज कॉल्ड एज सेक ऑफ थीटा, तो ये 1 आता है। ओके, ये जस्ट डेफिनेशन। तो हमने अभी जस्ट ये देखा कि ये 6 तरीके के टर्म्स और रेशियोज बताए गए कि ये रेशियोज हम लेंगे। बट ये रेशियोज एक्चुअली हैं क्या, उसको अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं। सो व्हाट इज दिस साइन ऑफ थीटा? So all these things are defined with reference to this right angle triangle जो अभी हमने यहां लिए हैं। If you are considering this angle as theta, okay student, then this sine of theta is given by, मैं just short form में यहां लिख देता हूं डिनोटेशन में, whatever the perpendicular you are taking here means this perpendicular means the opposite side by hypotenuse. So write this, मैं just इसे फिल करता हूं, आगे बना के दोबारा हम लिखेंगे। So it is perpendicular by hypotenuse. If you are taking this cos of theta, then you will have to go for the base. So here you have to take the base by hypotenuse. If you are taking the tan of theta, then you have to take the perpendicular by base. Okay, and if you are taking the say cosec of theta, just reciprocal, 1 divided by p by h become h by p, ये हो जाता है। हाँ, ऐसे ही यदि आप sec of theta लेंगे, let me write it here, I think it is, if you are taking sec of theta, तो ये cos का उल्टा है, cos is our b by h, so reciprocal become h by b. If you are taking this cot of theta, it is a reciprocal of our tan,
tan is p by b, so it will be b by p. ओके स्टूडेंट, ये सारी की सारी चीजें। सो ये कैसे डिफाइंड है, इसका फुल फॉर्म के साथ हम नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, एंड आपको भी रख लेना, आप जस्ट ऐसे याद रखिए। यहां हमने क्या सीखा कि 6 रेशियोज बताए गए कि हम 6 नाम रखेंगे एंगल को एसोसिएट करने के लिए, यानी किसी भी एंगल को हम 6 तरीके से और 6 नाम के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। वो ये है साइन कॉस टैन, एंड जहां साइन कॉस टैन इसके जस्ट रेसिप्रोकल टाइप के जो रेशियोज हैं, दे आर कॉसेक, सेक एंड कॉट। ओके, हाउ इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसा है अभी हम लिखने जा रहे हैं। Sir, can you show the previous page? राइट इट क्विकली, जल्दी लिखिए। मैं इसीलिए एक एक चीज को लिखता हूं, 3 to 4 टाइम मैं बोलता रहता हूं ताकि आप लिख पाए। ओके, राइट इट क्विकली। सो आप यहाँ पे ये चीजें यहीं पे लिख लीजिए, So the बाद last में one. डिफाइन करने वाला है। ऑल द स्टूडेंट हैव रिटन? It's the last one. Done, sir. ओके स्टूडेंट, तो अभी आप ये देखिए कि व्हाट आर द डेफिनेशन डिफाइनिंग टी रेशियोज। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसका क्या डेफिनेशन, उसे कैसे डिफाइन किया गया है। तो पहला चीज हमने अभी ये लर्न किया कि ये टी रेशियो जो है ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेने वाले हैं। दूसरा, ये ऑलवेज किसी ना किसी एंगल के साथ एसोसिएटेड रहने वाले हैं। हाँ, एंड तीसरा, हमारे P एंड B जो हैं ये इंटरचेंजेबल हैं यदि हमारा एंगल कंसिडरेशन बदल जाता है तो। चौथा, हमने अभी तक ये लर्न किया है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मींस पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ठीक है, तो ये सब अपने पास अवेलेबल रहेंगे, इवन वी आर गोइंग टू राइट दिस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सो लेट अस ड्रॉ द ट्रायंगल। सो यदि आपने एक ट्रायंगल ले लिया है, लेट मी कंसीडर this as A, B, C. The angle B is 90 degree. This is the angle under consideration. This is called as theta. ठीक है, so this one is called as hypotenuse, denoted by H. This one is called as base, B. This is called as perpendicular, denoted as P. और जो कॉमन नाम है हमारे बेस का, ये होता है एडजेसेंट साइड। जो कॉमन नाम है हमारे परपेंडिकुलर का, ये होता है हमारा अपोजिट साइड। तो ये हमें ध्यान में रखना है, दिस इज कॉल्ड एज अपोजिट साइड। ओके स्टूडेंट, सो अपोजिट साइड बोलूं और परपेंडिकुलर बोलूं तो एक ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, एडजेसेंट बोलूं और बेस बोलूं तो एक ही है। ओके, एंगल कंसिडरेशन पे डिपेंड करता है। नाउ द 6 रेशियोज, अभी हमने आपको पहला रेशियो बताया कि सबसे पहला जो डिफाइन किया गया है वो कहलाता है साइन ऑफ एनी एंगल। साइन ऑफ एनी एंगल डिनोट करेंगे, हमने यहां एंगल को थीटा मान लिया है, तो थीटा इट इज गिवन बाय P बाय H। आप अभी इसे ऐसे रटेंगे, मीन्स इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रिमेंबरिंग। बट इस साइन थीटा को यदि आप फुल फॉर्म में देखेंगे डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ये बोलता है कि यू टेक द अपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, इट इज दिस वन। और अपोजिट साइड का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। सो इट इज गिवन एज परपेंडिकुलर बाय
हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। यदि आपको यहां से पूछा जाए व्हाट इज साइन ऑफ एंगल ए, इसका मीनिंग आपको ये है कि आपको अपोजिट साइड लेने हैं, तो अपोजिट साइड थीटा के सामने हमारा बीसी है और सीबी, बट हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स, इट इज आवर एसी और सी। ओके, इसी को हम बोलना है। यदि मैं इसे सिंबल फॉर्म में डिनोट करूं, दिस सिंबल आई हैव ऑलरेडी डिनोटेड एज पी बाई एच। ओके स्टूडेंट, सो आप ऐसे ध्यान में रखें, या तो अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज याद रखें, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज याद रखें, दोनों सेम ही है। सो ये पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन बोलते हैं कि cos ऑफ द एंगल दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन दैट इज गिवन बाय बी बाय एच। ओके, यदि हम फुल फॉर्म में इसे ध्यान में रखें, मींस लेट मी मार्क दिस इन द बॉक्सेस, आप भी बॉक्स में इसको रखिए ताकि आप भूले नहीं। द cos ऑफ angle theta is given by adjacent side by hypotenuse। So adjacent side means the angle under consideration, उस एंगल के एडजेसेंट होना है। तो बुक्स में और कई जगह लिखे रहते हैं एडजेसेंट साइड टू द एंगल, या हाँ, तो वो एंगल वर्ड यूज करें नहीं करें अंतर नहीं पता चलता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज ही एंगल अंडर कंसिडरेशन ही डिफाइन किए गए। सो इन दिस फिगर our angle is theta, the adjacent is just the side which is touching this theta, so it is our AB. AB by hypotenuse is always fixed, it is AC. This is given by base by hypotenuse. Means in short it can be denoted by B by H, mean the same thing. कैसे कैलकुलेट होता है ट्रायंगल में, अभी आपको हम दिखलाने वाले हैं, just wait for a few minutes. The third one what is defined is called tan of theta. याद रखें, tan of theta, it is given by P by B. For defining, means tangent of any angle theta is given by perpendicular is nothing but it is the opposite side by adjacent side. Opposite side named as perpendicular and adjacent side is named as base. From the figure we can write the opposite side to the angle considered is our BC. So right here BC, and adjacent side to the angle is our AB or BAU में, right? In denotation form, this BC is perpendicular P and the base is B. Okay student, these are the three fundamental ratios that you have to keep in mind. अभी आपको बाकी रेशियोज लिखने हैं, तो बाकी रेशियोज के लिए कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट इसके रेसिप्रोकल लिख देने हैं, मींस कि नीचे जो डिनोमिनेटर में उसे न्यूमरेटर में लिखिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखिए, हो गया बाकी रेशियोज का काम तमाम। ओके, सो उसको रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मैं फिर भी लिख देता हूं। द फोर्थ वन इज आवर, सो साइन का उल्टा चलेंगे, रेसिप्रोकल चलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज cosec of theta. It is 1 by sine of theta, और डेफिनेशन वाइज यदि मैं पीबीएच के टर्म में देखूं, देन cosec of theta
इज गिवन बाय, जो साइन का उल्टा था, साइन वाज, आप बस ऊपर के तीन याद रखिए, देखिए साइन वाज p बाई एच और b बाई एच, इट वाज p बाई एच। तो जस्ट इसके डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लीजिए। तो मैं जस्ट इधर आपको रफ कर देता हूं, सिंस साइन ऑफ थीटा इज p बाई एच, तो अभी हमें इस कॉसेक को डिफाइन करने के लिए इसको ऊपर लेना है न्यूमरेटर में एंड इसको नीचे लाना है, सो इट बिकम h बाई p। जस्ट आप ये नाम थोड़े समय के लिए आप याद रखें और रट लें, बाद में आपको बहुत इजी हो जाता है। यदि आप इसे फुल फॉर्म में डिफाइन करेंगे, व्हाट इज दिस, h इज कॉल्ड एज द हाइपोटेन्यूज by this p is our perpendicular. If someone want to write in the term of the common name, then it is hypotenuse divided by perpendicular is called as the opposite side of the triangle. So this is the other way of writing. Okay, so चीजें एक ही हैं, आपको बस ऊपर के तीन चीजें ध्यान में रखिए, बाकी के तीन चीजों को याद रखिए, रेशियोज को पलट के लिख देने हैं। हाँ, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं होती मैथमेटिक्स या किसी भी चीज में। Written, can I go ahead? The fifth one, or the fifth ratio is our sec of theta. It is nothing but, ऐसे आप याद रखें कि ये cos of theta का रेसिप्रोकल है। For defining this sec of theta, आपने cos of theta को याद रखे हैं, cos of theta is our b by h, तो जस्ट रिवर्स करके लिख देने हैं, so it is given by h by b. Okay, it is only this much. यदि आप इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहें, then it is given by hypotenuse divided by base or hypotenuse divided by adjacent side. एक ही चीज। Now the sixth one and the last one, the last ratio is cot of theta, it is our tan of theta। तो इसे लिखने के लिए यदि आप पीबीएच के टर्म में लिखेंगे cot of theta, तो आपने tan of theta को देखिए याद रखा है, tan of theta is p by b। क्या करना है, नीचे को ऊपर, ऊपर को नीचे, ये करना है, means it become b by p। ओके स्टूडेंट, ऐसे ऐसे आप याद रखिए। यदि आप इसे फुल फॉर्म में लिखना चाहेंगे, बहुत इजी है, b का मीनिंग होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और you may write this as the opposite side. No, opposite side was for the tan, so this opposite side have to be kept in denominator, we have to write the for the base which is adjacent side, divided by opposite side। ओके स्टूडेंट, इट इज सो सिंपल। तो आपको ये जो हमने 6 रेशियोज लिखे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। यदि मेरे को किसी ट्रायंगल में ये चीजें दी हुई हैं, तो हमें यदि उस एंगल को पूछा जाए या उस एंगल का टी रेशियोज पूछा जाए, तो जस्ट उसके साइड का रेशियोज ले लेंगे। ओके, कैसे लेंगे हम अभी करके दिखाएंगे। दूसरा, जो बाकी चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट पेज में बताई हैं, उसको आप समराइज कर करके लिख लीजिए। दैट इज इवन कॉल्ड एज द आइडेंटिटीज। So whatever the identity is followed from the definition, write it.
आइडेंटिटीज फ्रॉम डेफिनेशन, यानी डेफिनेशन से ही ये चीजें लेकर आई गई हैं। हम देखेंगे कि वी कैन डिराइव सम अदर आइडेंटिटीज like sin square theta plus cos square theta is equals to 1. Okay, that we will see. Those are the derived one, means प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके हम लेफ्ट से राइट हैंड साइड में पहुंचते हैं, बट ये डेफिनेशन से ही लिया गया है, सो इसको कभी प्रूफ या इस चीज की जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज दैट? द वेरी फर्स्ट वन इज our sin of theta is reciprocal of this cosec of theta and its value product is always 1. The second one आप जैसे चाहे ऐसे लिख लीजिए, sec या sin के टर्म में आप लिख सकते हैं. Cos of theta when multiplied with the sec of theta, it is going to produce 1. The third one is the tan of theta going to multiply with cot of theta, it is going to produce 1. यहां से आप cosec equals to 1 by sin लिखिए और sin equals to 1 by cosec लिखिए, कोई अंतर नहीं होता है. Already earlier we have written. So this also gives sin of theta is same as 1 by cosec of theta. आप कितना फास्टली एंटिसिपेट करते हैं, रेशियोज लिखते हैं, ये आपको हेल्प करता है आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. Then cos of theta may also be written as reciprocal of sec of theta, and this also tells us the tan of theta can also be written as the cot of theta. Students, so the best thing is you please keep this thing in mind, and जो भी हमें चाहिए जहां हम जस्ट उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमें मिल जाए. ओके, इट इज वन. स्टूडेंट, विथ ऑल दिस थिंग लेट मी राइट वन थिंग मोर, जो कि अभी हमने बताया कि यदि एंगल का कंसिडरेशन बदल जाता है तो हमारा रेशियोस बदल जाता है. उसके लिए नोट इफ द एंगल कंसिडरेशन इज चेंज्ड, तब तो मैं अभी आपको जस्ट क्विकली एंगल चेंज करके लिख करके आपको बताता हूं. सो स्टूडेंट, if my triangle is like this one, say let me draw like this. This is my PQR, PQ, and this is R. If I am going to consider the sine of angle R, अभी हम जैसे यहां पे ये लिख रहे थे sine of theta, whatever we are writing here, it means it is same as sine of angle A करके लिखा जाए और sine of A करके लिखा जाए, ये एक ही चीज होता है. ओके स्टूडेंट, कुछ कुछ बुक्स में ये भी फॉलो किए जाते हैं, बट द बेस्ट आइडिया इज दिस. If the angle A value is denoted by theta, then it is denoted by sine of theta. तो एक ही चीज है. मीन्स ऊपर में जितने भी चीजें हमने लिखे हैं, I have defined everything for the angle A. So I may say sine of angle A, cos of angle A, tan of angle A. हाँ, बट यदि मेरा एंगल A के बदले यदि मैं यहां पे ये लेता हूं, फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज साइन ऑफ R, यदि आपको सिंपली ये पूछा जाए तो स्टूडेंट यहां हमने एंगल नहीं डिनोट किया है, जस्ट द वर्टेक्स इटसेल्फ इज कंसीडर्ड एज डिनोटिंग द एंगल. हाँ, जहां यदि एंगल्स के डिवीजन हो रहे हैं उस समय एंगल को 3 अल्फाबेट से डिनोट करना या
एक सिंबल से डिनोट करना मैंडेटरी होता है। बट यदि एंगल एक सिंगल वर्टेक्स पे और एक ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं तो वर्टेक्स इटसेल्फ कैन बी टेकन एज दैट एंगल। ओके, इट इज दिस वन। सो इफ आई एम टेकिंग द एंगल आर, व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल आर? तो अभी आपको आपके माइंड में क्विकली दौड़ना चाहिए कि व्हाइल यू आर कंसंट्रेटिंग एट द एंगल आर, यहां पे आप कंसंट्रेट कर रहे हैं। साइन का मीनिंग है कि इसके अपोजिट वाले हमें लेने हैं, एंड ये हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। सो यदि आपको ये पूछा जाए, यू मस्ट राइट पी क्यू बाय पी आर, इसका ये सिंपल मीनिंग। हाँ, मेरे को अभी यहां से यदि कॉस ऑफ एंगल आर पूछा जाए, व्हाट इज दैट? आई हैव टू गो फॉर द एडजेसेंट, मींस इस आर वर्टेक्स को ही टच करता हुआ वाला साइड हमें चाहिए। इट इज दिस वन। सो दिस कॉस इज आवर आर क्यू divided by PR. You may write. If anyone is going to ask you what is tan of angle R, then you have to take the perpendicular, means opposite one. So R ऊपर है, यहां ध्यान देना है, तो opposite वाला बेस, बेस नहीं, इस केस में horizontal line is not called as the base. This horizontal line PQ will act as the perpendicular. So it will be about PQ by this base is our QR. Okay, student, these are the forward trigonometrical ratios. What are the reciprocal or reverse trigonometrical ratios? साइन को जस्ट अभी आपका उल्टा रहेंगे, क्या रहेंगे? तो cosec ऑफ, यदि हमें r चाहिए, r पे कंसंट्रेट करिए, ये हमारे पी आर बाई पी क्यू आ जाएंगे। यहां से यदि आपको sec cos के बदले आपको sec ऑफ r चाहिए, then you can quickly get it PR hypotenuse divided by RQ you can get. Student, if you are in need of cot of angle R, then you will have to take the base, means QR divided by PQ you have to take. Okay, student? So all these things are for angle R. ये सारे रेशियोज डिफाइन किए गए। यदि आपको यहीं पे पूछ लिया जाए फॉर एंगल P, यदि P के लिए निकालने हैं तो जो हमने ऊपर बताए थे आपको, से साइन ऑफ एंगल P, तो यहां देखिए अभी हमें P को देखने पड़ेंगे, इस समय इस P को देखने पड़ेंगे। इसके लिए, इस P के लिए दिस PQ will act as the base, though it was perpendicular for angle R. Okay, so this time we have to take the perpendicular for P, means it is our QR. Okay, so it is our QR, perpendicular. Okay, and the hypotenuse remains unchanged, it is our PR. If I am taking the other one, यहां से बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं। देखिए क्या हो जाता है एक ट्रायंगल के लिए, मीन्स ऑब्जर्वेशन दैट इज नॉट रिमेंबर्ड एज एनी आइडेंटिटी और रिजल्ट, बट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। नाउ इफ आई एम टेकिंग द cos of angle say P, then it will be the base for this angle P, so this PQ, which is just touching this, and PR, it is this. यदि आपको tan of angle P चाहिए तो आप इसके परपेंडिकुलर QR डिवाइडेड बाय द PQ, ये आपको लेने पड़े। रिमेनिंग अदर थ्री यू कैन ऑल्सो गेट। लेट मी राइट वन मोर, से cosec और sec ऑफ एंगल P चाहिए हमें, तो cos का उल्टा जाना है, तो एंगल P का हमें cos में क्या रहता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, we have to go for hypotenuse by base, which is here.
hypotenuse is our PR by the base, it is our PQ. A student, if you watch these ratios carefully, बाकी दो को भी मैं लिख ही लेता हूं. चलिए, cosec of P. What will be cosec of P? Cosec of P means it will be the hypotenuse. It is our PR. आप फ्रेश पेज में लिखे, मेरा पेज यहाँ एंड हो गया इसलिए मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं. Hypotenuse cosec by perpendicular means QR. आप चाहिए तो यहां से आप cot of P भी आप लिख सकते थे. While you are going to write the cot of P, it will be the base for P. So PQ divided by the perpendicular, it is our QR. It is end by the perpendicular, it is our, so cot we are writing, cot means the base we have to take for the P by perpendicular, it is our QR. So it is Q and R, it is N. Student, the observation can be drawn here. If you compare this, what we are observing, in first case, if you are observing sine of R, it is PQ by PR. But in second, for angle P, you are getting that this PQ by PR is same as this. Are you getting this one? So these two are the same. This hold good. It means whatever the sine of angle R, that will be same as cos of angle P for a right angle triangle. So this is called your complementary relation. More detail we will learn later. Right now the purpose was just how to calculate these ratios if the angle are changed. So ये complementary angle relation हम अलग टॉपिक में आपको बताएंगे, not right now. अभी लिखने में बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को. Okay student, now let me take one example. अब आपको हम एक एग्जाम्पल से बतलाते हैं कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सारे के सारे रेशियोस. So, इस पे बेस 2 से 3 तरीके के ही क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते. ठीक है, पहला, फॉर द फिगर गिवन, फॉर द गिवन फिगर फाइंड, अपने को सारे के सारे ऑल द टी रेशियोज फॉर एंगल ए. ठीक है, मैं अभी ऐसा ही बना लेता हूं कि आपको ऐसा एक कुछ फिगर दिया हुआ है जिसमें कि ये ए है, बी है, सी है. दिस AC length is 5 centimeter and this AB length is say 4 centimeter. Only this much thing is given. इसके लिए हमें इस एंगल ए के लिए सारे के सारे 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं. The same thing, find all the T ratios for C. एंगल C लिखा रहे और ओनली C लिखा रहे, एक ही बात होती है. ठीक है, तो देखिए मैं एक करके दिखलाता हूं, दूसरा आप करेंगे. मैं एंगल C को ही कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत बार आप लोग को ये अनकन्वीनियंट होता है जब ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो. बट देयर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ uncomfort related to orientation. स्टूडेंट, आप पहले जो यदि फिगर दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसको रीड करें, यदि नहीं दिए हुए हैं, यदि वर्बल स्टेटमेंट है तो भी आप
फिगर ड्रॉ करेंगे खुद से. So what is there? It is already given. So let me just draw this. हम जस्ट अभी से यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. So it is our A, B, C. This is our 5. This is our 4. A student, only this much information is given. I have to focus over angle C. ठीक है, तो पहला आप C पे आप फोकस करें. आपको जब सारे सारे रेशियोज निकालने होते हैं, इसका मीनिंग है तीन के तीनों साइड आपको पता होने चाहिए. But we are given with only two sides. So right, by Pythagoras theorem, what we can say? AC square is equals to AB square plus BC square. Or directly you may denote in the term of H square equals to P square and B square. आप ऐसे भी आप denote कर सकते हैं. Okay? So just write it. So do it. AC is already given as 5 square. AB is 4 square plus BC square. Means 25. Bringing this 4 square on left hand side minus 16 is equals to BC square. It means what will be BC? Keep in mind here the triangle side means it is a length. It cannot be negative. तो यहाँ आपको negative नहीं लेना है. So only we have to take the positive value. Means it is under root of 9. ये तो समझ में आता है ना बच्चे आप लोग को. इसका मीनिंग है कि 9 is equals to BC square हो गया. अब 9 का अंडर रूट आप लेंगे तो आपको 3 आ जाएगा. So this BC value is our 3 सेंटीमीटर. तो आपने जो फिगर ड्रॉ किया है इस पे जो आपने कैलकुलेट किया है इसे लिख लीजिए. पहला बात ये है, पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट. इससे गलतियां नहीं होती. Then you can very quickly write all the trigonometrical ratio. So write, therefore sin of C I will write. तो अभी हमें जब C देखना है तो C के परपेंडिकुलर देखने हैं. So आप बस फॉर्मूला इनिशियली सिंबल फॉर्म में लिखे P by H. बट यहां इस फिगर में हमने PBH डिनोट करना छोड़ दिया है. आप चाहे तो इसे डिनोट कर लीजिए कंसीडरिंग द एंगल C. So this will give us the P, this will give us the value of B, this is the value of H. लेकिन यदि आप एंगल A कंसीडर करेंगे उस समय आपका P एंड B इंटरचेंज हो जाएगा. तो आप फिगर रीड्रॉ कर करके ये T रेशियोज दोबारा कैलकुलेट करेंगे. आप इसी फिगर से कैलकुलेट करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस रहते हैं. हाँ, सो यदि आप PB डिनोट ही नहीं कर रहे हैं, आप यदि जस्ट साइड ABBC के टर्म में लिख रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है. But the better habit is just remembering in the form of PBH but taking care of the angle. So P here for this C is our 4. So this is simply 4 by 5. यही आ गया, यही आंसर है. 4 by 5 ही आंसर है. साइन हो गया एक. अभी हम लोग cos ऑफ देखेंगे. cos ऑफ एंगल C. स्टूडेंट एंगल C करके नहीं लिखते, ओनली C लिख देते हैं. दैट इज एनफ. इट इज आवर B by H. It is going to give us 3 by 5. This is the answer. Tan of C, it is P by B. Just denote it. The P, whatever we have taken, is the 4. And B, here it is our 3. This is the answer. Okay? ऐसे ही यदि आपको cosec लिखने हैं, cosec of C, it will be just reciprocal of sin. लिखिए, just यहां से आप देख लीजिए. It is our 5 by 4. I have written directly. आप चाहिए तो PBH के फॉर्म में आप लिख लीजिए, या आपके लिए मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो हमारे बहुत सारे नए नए बच्चे रहते हैं. It is our H by P. This value is our 5 by 4. If it is asked for, say, sec of C, so sec C is defined with the H by B.
it will be 5 by 3. If it is asked for the cot of C, you have to take this as B by P, and this becomes 3 by 4. A student, all of these ratios that we have obtained is with reference to the angle C. यदि मेरे को यहां से साइन ऑफ एंगल ए यदि पूछा जाए तो द सेकेंड पार्ट आई हैव सॉल्व इट हियर. यदि फर्स्ट पार्ट में आपको साइन ऑफ एंगल ए पूछा जा रहा है, आप इस फिगर को भी देखकर आप वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट उस समय आपके परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज हो जाएंगे. सो बेटर है, लेट मी गो फॉर द नेक्स्ट पेज. You have to do more and more practice since you are the beginner. तो आपको इनिशियली प्रैक्टिस करनी ही चाहिए. ए बी सी. Now we are focusing over this angle A. It is above 5. This is 4. This is 3. Okay. Now in this case, this 4 will act as base because this is the angle under consideration. Earlier, what was there? This was the angle under consideration, angle C. So in that case, we have denoted this by the P. But for the angle A, this is denoted by B. This 3 will denote our P and H remains unchanged. Okay, student? So write sine of A is P by H. देखिए ये डेफिनेशन यही रह गया, P by H ही रह गया, हमारा P का वैल्यू बदल गया है. So it become 3 by 5. This is the answer. आप देखेंगे तो पीछे ये cos of angle C आया था. हाँ? Cos of angle A if you are going to take, then it is B by H. In this case, the B is 4 by 5. Tan of angle A, it is P by B. The P is here 3 and B is here 5. So all of these are giving the answer. आपको यदि opposite वाला चाहिए, means if we need the cosec of angle A. So 3 by 4. हाँ बोलिए, रिवर्स लिख लिया क्या? So tan A. ओके, यस यस यस, So 3 by 4. गेटिंग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. B is here our 4. गुड. So this we have to put. स्टूडेंट, ऐसे ही अभी आपको यदि cosec of angle A लिखने हैं तो देखिए cosec का जो डेफिनेशन है साइन का उल्टा h by p. तो ये फिगर जो आपने ड्रा कर लिए हैं, h is 5 and p is our 3. This is the other answer. The fifth one is our sec of angle A. Just in 5 minutes I will finish it just by giving one more question. So it will be given by h by b. It is 5 by 4. If you are taking cot of A, you can get this by, so it was P by B for tan, so it is B by P. So now it is 4 by 3. This is the answer. So this is one type of question where in the figure itself some measurement is given. Now the next type of question where just one ratio is given and other ratio you have to calculate. So उस type के question करके बतलाता हूँ. Student have written? Student, so if cos of theta is given by, say 5 by 7, I am taking 5 by 7, then find all other ratios for theta.
स्टूडेंट, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है. हियर व्हाट इज गिवन इज आवर one of the ratio. So cos of theta is given as 5/7. तो आपको ये समझने हैं cos of theta is given by b by h. तो आपको ये समझने हैं b is here, though ideally it should be 5k, but you can take this only as 5 because k के बाकी रेशियोज में कैंसिल ही हो जाएंगे. And h is our 7. आप बस इसे फिगर में ड्रा कर लीजिए. तो आप इन चीजों को क्विकली एक फिगर में ड्रा करने का आदत डालिए. सो कंसीडर दिस एंगल एज थीटा. आप इस टेबल का नाम चाहे तो दे दीजिए. इस ट्रायंगल का नाम एबीसी. cos of theta means this value is like our 5. तो आप ये 5 लीजिए and this value is our 7. So 7 is like our h and this is like our b. इसका ये मीनिंग. Therefore आप इसी ट्रायंगल के बगल में आप h कैलकुलेट कर लीजिए. मींस h एंड b दिए हुए हैं तो आप p कैलकुलेट कर लीजिए. सो p इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसे हमने रीअरेंज करके लिखा था. ऊपर में हमने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया था एक एक चीज, बट यू कैन फ्रीली यूज इट डायरेक्टली. सो जस्ट पुट करिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में 7 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर. इट इज गोइंग टू गिव यू 49 minus of 25. It is going to give you 24. So 2 root 6. I think it is this one. Okay. So ये इतना ही रहेगा. फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा. रूट है तो रूट में आप रखिए. जब हमें ये पता चल गया, तो आप इधर ही therefore p आपने यहां से ले लीजिए 2 root 6. दो यू हैव टू कैलकुलेट दिस. आप इसे यहां पे लिख लीजिए इस ट्रायंगल पे. राइट इट ऑन द ट्रायंगल 2 under root 6. दिस इज लाइक आवर p. ऑल द रेशियोज. therefore what are the sign of theta? It is given by p by h. So take it. What is p? Our p means it is जो हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज आवर p. सो 2 root of 6 डिवाइडेड बाय द h इज 7. दिस इज द आंसर. हर एक एक चीज का वैल्यू मिलता जाएगा एक एक लाइन में. cos इज ऑलरेडी गिवन, सो cos दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. लेट अस कैलकुलेट द tan of theta which is p by b. Here p we have calculated 2 root of 6 and b is our 5. This is the other answer. The cosec of theta, it is our h by p. The h is, आप ये फिगर देखकर हम नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं. ओके ना स्टूडेंट? सो h का वैल्यू हमारे यहाँ 7 लिया है हमने एंड p का वैल्यू 2 root of 6 लिया है. स्टूडेंट, sec of theta is equals to h by b. So h is taken as 7, but b in this case is our 5. Then cot of theta is equals to reciprocal of tan, means it is b by p. It is our b is our 5 and 2 root of 6. और स्टूडेंट जस्ट आप रेसिप्रोकल आप लिख लेते, ऐसे लिख करके सीधा cosec of theta is equals to 1 by sin theta, तो भी सेम ही आंसर आने वाला. ओके, दिस इज वन वे. बट some of you may ask, no sir, it doesn't mean when this ratio is given, that doesn't mean b is equals to 5. You are correct. इसका ये मीनिंग नहीं कि b exactly 5 ही है. b कुछ 5 का मल्टीपल रहेगा. So if the multiple factor is 3, at the same time this h will also be multiplied by the same factor. आपके p भी जो आएंगे उसी के मल्टीपल में आ जाएंगे. मैं वैसे करके दिखलाता हूं. स्टूडेंट हैव रिटन दिस. सो नोट, यहां नोट में हम बनाकर इसे लिख देते हैं.
व्हाट इज द फैक्ट। आप ऊपर के जैसे आपने लिया है ऐसे भी लिख के कैलकुलेशन कर देंगे, कोई एरर नहीं है, you will get the full marks, but the fact or the correct way is like this. So here ratio is given, not the exact value, means आपके क्या दिए हुए हैं, cos of theta is given as what is that, 5/7. So it may be possible that this is 10/14, ये भी तो हो सकता है, तो भी आप देखते तो यही रहता, और मे भी इससे भी कोई हायर मल्टीपल में हो सकता है, से 20/28, तो भी आपको यही मिलता। मैं दिस इज द रेशियो, क्योंकि इसे भी आप कैंसिल करिए तो यही मिलने वाला है। सो द करेक्ट थिंग इज दैट वट एवर दिस बी वी आर गोइंग टू टेक, this cos theta is b by h. So better thing is that this b should be in multiple of 5k, not only 5, and the h should be multiple of 7k. See, यदि आपने मल्टीपल लिया तो कुछ आंसर चेंज होता है क्या, ये चीज मैं आपको दिखलाना चाहता हूं। So this implies combining these two, the p will be under root of h square minus b square. This is going to give us 5k square plus 7k square. Okay student, so ये कितना हो जाएगा, देखिए आप देखेंगे तो ये 25k square minus, it is minus of our 7k square, means 7 is 49 k square. Now k square is the same kind of thing, it is also under root of 24 k square. K square means k can be taken out, under root of 24, देखिए सेम आ गया. So this implies k is not the k but the p is, means taking this 24, so अब 2 बाहर ले लीजिए, k into 2 root 6 और 2k root 6, 2k under root 6. Therefore अब आप यदि साइन ऑफ थीटा लेंगे, दिस इज आवर p by b, टेक दिस 2k root of 6 divided by, sorry, p by h is this, the h is here our 7k, so it is our 7k. Student, what we are observing, the k is getting cancelled, 2 root 6 by 7, the same answer. Okay, so it is same as ever. So whether you are appending this p, b or h with k or not, that is not going to affect the ratio. Okay, ये चीज आप यहां से यदि tan of theta लेते, it was, or it is here p by b, so in this case the p is 2k root 6 divided by our b is 5k, it is 2 root 6 by 5. Okay student, it is this way. So this is how we can solve. Student, आप just थोड़े से होमवर्क बस आप नोट कर लीजिए and please do this. So find all the t ratios for following. जो पहला टाइप का चीज है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, okay, so write this as
दिस इज 12, दिस इज 13। तो इसमें आपको सारे के सारे फॉर कंसिडर दिस एज पी क्यू आर, इसमें आपको ऑल टी रेशियोज फॉर पी एंड आर। पहले आप पी के लिए टोटल 6 सेट कैलकुलेट करेंगे कंप्लीट सेट, फिर आर के लिए आप कैलकुलेट करेंगे। द सेकेंड टाइप इज आवर इफ cos of say tan of theta is equals to 7/4. It is like this. All t ratios for this theta. Okay, student. देखिए फोर्थ थर्ड वन, if 2 sin theta minus 3 is equals to 0, then find all t ratios for theta. Student, I think ज्यादातर जो अच्छे बच्चे समझ गए होंगे। if 3t 3 cos of theta minus 2 sin theta, or let me make this as 4. Like this is equals to 0, then have to find all t ratios for this theta. Student, आप देखिए आपको शायद थर्ड एंड फोर्थ में थोड़ी डिफिकल्टी टाइप की फील हो रही होंगे, बट कुछ भी नहीं है, सेम एज द सेकेंड वन। देख लीजिए, मैं जरा हिंट करता हूं फॉर द थर्ड वन। देखिए व्हाट इज गिवन, गिवन इज 2 sin of theta minus 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग हमारे को साइन थीटा दिया हुआ है। कैसे? आप थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये साइन थीटा दिया हुआ है। ब्रिंग दिस ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, सो दिस मीन्स नाउ ब्रिंग दिस ऑन द डिनोमिनेटर। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। अभी जब ये पता चल गया, इसका मीनिंग है कि अब आप एक बस ट्रायंगल ड्रा करिए। स्टूडेंट, ये थोड़ा हमने गलत लिख दिया है, 2 शुड बी हेयर एंड 3 शुड बी हेयर, अदरवाइज हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सो मेक दिस एज 4 स्टूडेंट, इसे जरा 4 करिए, अदरवाइज ये डेटा से ये पॉसिबल नहीं होगा आपको। सो मेक दिस एज द 4 4, it is also our 4 in denominator. This means it is 4, this is 3, so this is our angle theta in that reference. So you just calculate this value. This value will be how much? 4 square minus 3 square. ये आ जाएगा कुछ। So यहाँ से ये आपको पता चल गया कि ये हमारा P लेना है, ये हमें H लेना है, इससे हमें under root 16 minus 9, so it become under root of 7. This is like our B. So therefore here you can denote all these things. P is our 3 और 3k चाहे तो आप ले सकते हैं। H is like our 4, therefore B is calculated as root of 7. k को छोड़ ही दीजिए, आप लेकर करते हैं तो भी well and good है। Therefore cos of theta is equals to what is there? It is our B by H, so under root of 7/4. This will be the answer. ऐसे ही आप बाकी सारा स्टूडेंट, क्या हमारे फोर्थ में कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? स्टूडेंट, फोर्थ भी वही है जो थर्ड है। व्हाट इज देयर? 3 cos थीटा, 3 cos of theta is equals to
और पहले तो माइनस है, मैं माइनस ही लिख देता हूं, माइनस ऑफ 4 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट आप कोशिश ये करें, इट इज अवर साइन, कि इसको पहले सिंगल जगह पे थीटा को लेकर के आए। सो हाउ दैट इज पॉसिबल, तो आप साइन थीटा को एक साथ रखिए और एक साइड ले जाइए। सो 3 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन ऑफ थीटा। कन्वीनियंट होता है साइन कॉस tan में, तो बेटर है कि हम इस 4 को इसके नीचे ले आए एंड cos को इसके नीचे ले जाएं। सो 3/4 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos ऑफ थीटा। स्टूडेंट एक आइडेंटिटी आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और यहां से भी कि साइन थीटा बाय cos थीटा इज कॉल्ड एज tan थीटा। सो दिस इंडिकेट 3/4 इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। सो ये चीजें हमें यहां से पता चल जाती है। मीन्स while tan theta is equals to 3/4, it simply means this is like our p is 3, this means it is b is our 4। so यहां से अब आप h निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर में इट बिकम 5। बाकी अभी आप टी रेशियो आप कैलकुलेट कर लीजिए, इजी है। स्टूडेंट एक जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, दो आई हैव गिवन इन दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट, कि if you are dividing this sine by cos, then what is that one? So if I am taking sine theta by cos of theta, how much, ये कितना आता है? So student, sin theta by cos theta का मीनिंग है sin is defined by p by h। ओके, ये हमने पुट कर दिया। cos का मीनिंग है इट इज अवर b by h, ये हमने पुट कर दिया। अब जरा आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर, मीन्स जो डिवीजन है उसे आप मल्टीप्लीकेशन में ले जाइए। So p by h, this will get reversed. So h will come in numerator and this b will come in denominator. H will getting cancelled. So it will be p by b. But what is the by ratio? This p by b is called as how much? Tan of whatever the angle theta is. Okay. So therefore, sin theta by cos of theta can be written as tan of theta। ओके, तो ये चीज हम कल भी और भी थोड़ी इसके बारे में बात करेंगे, बट राइट नाउ दिस मच इज सफिशिएंट फॉर यू पीपल। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एनी डाउट टू एनी स्टूडेंट, देन प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। सॉरी, शैल वी स्टॉप द क्लास? सो आप ये सारे सारे क्वेश्चन करेंगे, ये है। एंड आई थिंक क्या हम ओके जस्ट वेट, क्या हमारे टेक्स्ट बुक में कोई क्वेश्चन हम कर पाएंगे? सो थोड़ा सा उसे करिए ताकि हम फास्टली मूव कर पाए। ओके, सो दिस इज आवर टेक्स्ट बुक। देखिए सारे के सारे डेफिनेशंस ये सब दिए हुए हैं आपको।
because of network issues, I was out for a certain time. But अभी आपको ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप में आपको पोस्ट कर दिया है. So let me just present once more my screen. Okay, so students, you can see these are the homework. Means this is what we have written the question, and in our textbook you just do the question number 1 to 5 only. Okay, the other question we will do tomorrow. So कल हम बाकी क्वेश्चन करेंगे. आप जस्ट इतने ही क्वेश्चन करें, और प्रीवियस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बाकी है ऑनेस्टली स्टूडेंट प्लीज डू, क्योंकि उससे हमें एग्जाम्पलर के बहुत सारे एक्सरसाइज भी करने हैं. बट ट्रिग्नोमेट्री का इतना करिए. So tomorrow we will again meet. Any doubt then please ask, otherwise I shall stop the class here. No doubt? Yes, student. So thank you, student. Thanks a lot. Please vacate the class. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.